السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل فکر شہباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، 20 دسمبر کی دوپہر دلی کا وہ منظر جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ ایک طرف تھے مشہور ملحد جاوید اختر جو اپنے الفاظ کے جادو سے لوگوں کو الجھانے میں ماہر ہیں، اور دوسری طرف تھے اسلام کے ایک داعی مفتی شمائل ندوی صاحب۔ نتیجہ ہم سب نے دیکھا۔ وہ جاوید اختر جو بڑے بڑے منچوں پر اسلام پر سوال اٹھاتے تھے، وہ مفتی صاحب کی بیسک اور سیدھی دلیلوں کے سامنے ایسے خاموش ہوئے جیسے ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ اس فتح کا اثر صرف اس حال تک سیمت نہیں رہا۔ آپ ذرا یہ کمنٹس دیکھیے، ہزاروں لوگ ایمان لے آئے، ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب دشمن اسلام لاجواب ہو رہا ہو اور لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان خوشی مناتا، ہر ممبر سے الحمدللہ کی صدا آتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ جیت ہضم نہیں ہوئی۔ انہیں جاوید اختر کے ہارنے کی خوشی کم ہے اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے جیتنے کا غم زیادہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی ری ایکشن کی جو دشمن کی طرف سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے آیا ہے۔ مولانا امتیاز برکاتی صاحب، جنہوں نے اس جیت کو جیت ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا واقعی مفتی شمائل ندوی صاحب نے غلطی کی، یا پھر یہ وہ پرانی بیماری ہے جسے ہم حسد کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سنیے مولانا امتیاز برکاتی صاحب کا وہ بیان جس میں وہ مفتی صاحب کی اس عظیم کامیابی کو معمولی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ڈیبیٹ کر لی، سنیوں میں ایسے عالم نہیں ہے کیا کہ وہ ڈیبیٹ کر سکے۔ کنویں کا مینڈک کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس کو کنویں کے باہر معلوم کچھ نہیں ہوتا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا غور کرو، ایک ملحد سے ڈیبیٹ کی ایک صاحب نے، لوگ تابوت اٹھانے لگے۔ مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جو سنی یہ لکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں کہ سنیوں میں ایسے عالم کیوں نہیں، وہ ان کی ٹول کٹ کا شکار ہو گئے۔ بدر کی بات، یہ علماء بیٹھے ہیں، کتاب کا نام ہے شرع عقائد۔ وہ مفتی صاحب نے پوری شرع عقائد کے اندر کوئی نئی بات ہے تو کہیں کوئی جو شرع عقائد کے اندر تھی وہ ذرا 2-4 انگلش کے ورڈ استعمال کر لیے۔ باتیں کوئی نئی کہیں سے بنا کر تھوڑی لائے۔ سنا آپ نے؟ امتیاز برکاتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مفتی شمائل نے کوئی توپ نہیں چلا دی، بس مدرسے کی بیسک کتاب شرح عقائد کی پوری باتیں انگلش ورڈز لگا کر بول دی، کوئی نئی بات نہیں کی۔ امتیاز برکاتی صاحب، میرا آپ سے اور پوری دنیا سے ایک سوال ہے۔ اگر میرے سر میں درد ہو اور میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ڈاکٹر مجھے پیراسیٹامول دے جو کہ سب سے بیسک اور پرانی دوا ہے، اور اسے میرا درد ٹھیک بھی ہو جائے، تو کیا میں باہر آ کر ڈاکٹر کو گالی دوں گا؟ کیا میں یہ کہوں گا کہ ارے اس نے تو مجھے بیسک گولی دے دی، کوئی نئی دوا کیوں نہیں ایجاد کی، کوئی بڑا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ مقصد دوا کی کوالٹی چیک کرنا نہیں تھا، مقصد بیماری کا علاج کرنا تھا، مقصد جاوید اختر کو چپ کرانا تھا۔ اگر وہ شرع عقائد کی بیسک باتوں سے ہی لاجواب ہو گئے تو یہ مفتی صاحب کی کامیابی ہے کہ انہوں نے مشکل بات کو اتنے آسان طریقے سے سمجھا دیا۔ اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کی۔ امتیاز برکاتی صاحب، حق ہمیشہ پرانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ بات کتنی پرانی ہے؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ مفتی صاحب وہاں اپنی طرف سے کوئی نئی کہانی بناتے؟ دین میں نئی بات پیدا کرنے کو ہی بدعت کہتے ہیں۔ مفتی صاحب تو وہی پرانا، ٹھوس اور حقیقی اسلام پیش کر رہے تھے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ تو بیسک سلیبس ہے، دراصل آپ کی کم عقلی نہیں بلکہ آپ کے اندر کا چھپا ہوا حسد بول رہا ہے۔ آپ کو تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ جواب بیسک تھا، آپ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ جواب دینے والا آپ کے مسلک کا نہیں تھا، یا وہ جواب دینے والا آپ نہیں تھے۔ جنگ کے میدان میں جب دشمن سامنے کھڑا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تلوار سونے کی ہے یا لوہے کی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دشمن گرا یا نہیں۔ جاوید اختر کا انٹیلیکچوئل گھمنڈ ٹوٹ گیا، یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ لیکن آپ کنویں کے میڈھک والی کہاوت دوسروں پر چلا رہے تھے، لیکن شاید آپ خود بھول گئے کہ کنویں سے باہر نکل کر دیکھیے، آج اسی بیسک جواب نے ہزاروں نوجوانوں کا ایمان بچا لیا اور ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ اگر یہ حسد نہیں تو کیا ہے کہ پوری امت خوش ہے اور آپ نقص نکال رہے ہیں۔ حسد انسان سے کیا کیا نہیں کرواتا، کبھی کبھی تو یہ انسان کو ممبر پر بیٹھ کر سفید جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے
मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब ने मुफ्ती शमाइल के किरदार पर उंगली उठाते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया। पहले जरा इनका ये झूठ सुनिए। ये जो मुफ्ती था ये तो बाद में उसी मुल्हिद के हाथ चूम रहा था, उसी सामने सर पे हाथ रखवा रहा था, फिर ये भी ऐलान हो रहा था खाना भी साथ में खाया जाएगा। वाह क्या अजीब बात है, ताल्लुकात भी बराबर निभाए जा रहे हैं। इम्तियाज बरकाती साहब जरा आंखें खोल कर वीडियो देखिए। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर का हाथ नहीं चूमा। आपने जोशे खिताबत में एक आलिम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या आपके मसलक में मिंबर पर बैठकर झूठ बोलने की इजाजत है? शायद आपको सपने में ऐसा दिखा हो, या फिर आपकी टूल किट ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है जिसका ताना आप दूसरों को दे रहे थे। हकीकत यह है कि मुफ्ती साहब ने जावेद अख्तर का हाथ अपने सर पर रखा था, और यह हाथ चूमना और सर पर रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जो शायद आपकी समझ से बाहर है। अब आते हैं असल बात पर। आपने कहा कि उन्होंने हाथ सर पर क्यों रखवाया और साथ खाने की बात क्यों की? आपके नजदीक ये गैरत की कमी हो सकती है, लेकिन दावते दीन की नजर में इसे हिकमत कहते हैं, इसे विजडम कहते हैं। इम्तियाज बरकाती साहब, जावेद अख्तर वहां कोई दंगल लड़ने नहीं आए थे। वो एक बीमार जहनियत एथियज्म के शिकार थे। क्या आप भूल गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, जब अल्लाह ने उन्हें फिरौन के पास भेजा? वो फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था? उससे नरमी से बात करना। क्यों? ताकि उसके दिल में असर हो। अगर मूसा अलैहिस्सलाम वहां जाकर सख्ती करते तो क्या फिरौन उनकी बात सुनता? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर का हाथ सर पर रखकर और उनकी खाने की दावत कबूल करके उनका ईगो खत्म कर दिया। उन्होंने यह मैसेज दिया कि जावेद अख्तर साहब, हम आपसे नफरत नहीं करते, हम आपकी सोच एथियज्म के खिलाफ है। आप इसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, हम इसे सुन्नते रसूल कहते हैं। आप चाहते थे कि वहां झगड़ा हो, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी साहब चाहते थे कि वहां इस्लाह हो। फर्क साफ है, आप दुश्मनी निभा रहे हैं और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगली बार किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले वीडियो को 0.5x स्पीड पर देख लीजिएगा, शायद सच्चाई नजर आ जाए। दोस्तों, तीसरा और सबसे अजीब मुतालबा जो इम्तियाज बरकाती साहब ने किया वो ये था कि मुफ्ती शमाइल, तुमने जावेद अख्तर से खुदा के होने पर तो बात कर ली, लेकिन पहले आओ हमसे डिबेट करो उन मसाइल पर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान है, जैसे कि इम्कानी किस्ब वगैरह। यानी मौलाना का कहना है कि दुश्मनी इस्लाम को बाद में देखना, पहले आओ हम आपस में लड़ लें। पहले इनका ये क्लिप सुनिए। एक तरफ वो मुल्हिद ज़ाते बारी ताला अल्लाह को नहीं मानता, वो तो है ही मुनकिर, वो तो है ही गलीज़। मगर जो सफेद पोश बैठे हुए थे, क्या वो साफ जो आपकी उलमा किताबों में लिख कर चले गए? तो मैं कहता हूँ मुफ्ती शमाइल, अब इस पर डिबेट कब करना चाहते हो? चलो एक बार इस पर भी डिबेट कर लिया जाए। वाह इम्तियाज बरकाती साहब, वाह क्या प्रायोरिटी सेट की है आपने। पूरी दुनिया में इल्हाद का सैलाब आया हुआ है, नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं। एक शख्स उस तूफान के आगे डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा गाड़ रहा है, और आप पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि ओए पहले इधर आओ, पहले हमसे लड़ लो, पहले यह फैसला कर लो कि हम सही हैं या तुम सही हो। इसे एक मिसाल से समझिए। एक घर में आग लगी है, घर के बच्चे जल रहे हैं। एक भाई पानी लेकर आग बुझाने दौड़ता है और दूसरा भाई उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और कहता है रुको, आग बाद में बुझाना, पहले यह बताओ कि यह घर मेरे नाम पर है या तुम्हारे नाम पर। आप उस दूसरे भाई को क्या कहेंगे? कम अकल या जालिम? इम्तियाज बरकाती साहब, जावेद अख्तर जैसे लोग हमारे घर की बुनियाद, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर हमला कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम बुनियाद बचाना छोड़कर दीवारों के पीछे लगकर आपस में सेल्फ ओवर कर लें। आप कहते हैं पहले हमसे डिबेट करो। अरे भाई क्यों करें? क्या आप खुदा के इनकारी हैं? नहीं, आप भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं। थोड़े बहुत इख्तलाफ हैं, वो कयामत तक रहेंगे। लेकिन जावेद अख्तर तो खुदा को मानता ही नहीं, तो पहली जंग किससे होनी चाहिए, अपनों से या गैरों से? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की नजर बड़ी जंग पर है, और आपकी नजर आज भी मसलकी दंगल पर अटकी हुई है। यह आपकी तंग नजरी है जो आपको इस्लाम की फतह में भी मसलक की हार नजर आ रही है। खुदा का वास्ता इस कौम को बख्श दीजिए। आज का नौजवान ये नहीं देखता कि कौन बरेलवी है और कौन देवबंदी, वो ये देखता है कि कौन इस्लाम को डिफेंड कर रहा है। मुफ्ती शमाइल साहब ने इस्लाम को डिफेंड किया, इसलिए वो हीरो हैं, और आपने आपस में लड़ाई छेड़ दी। अगर आप वाकई हक पर हैं तो आप भी जाइए जावेद अख्तर के पास, करिए डिबेट और हराइए उसे।
हम आपके लिए भी ताली बजाएंगे, लेकिन जो मैदान में लड़ रहा है कम से कम उसका पैर तो मत खींचिए। दोस्तों, हसद इंसान को सिर्फ झूठा ही नहीं बनाता, बल्कि कभी कभी उसे अंधा भी बना देता है। इतना अंधा कि उसे दिन और रात में फर्क नजर नहीं आता। मौलाना इम्तियाज बरकाती ने नफरत में डूबकर एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर शैतान भी हैरान रह गया होगा कि ये काम तो मेरा था, इन्होंने कैसे कर दिया। पहले जरा इनकी ये मंतिक सुनिए, जहां ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर को एक बराबर बता रहे हैं। अच्छा, दोनों में मैं अगर फर्क करने की बात करूं, अगर जावेद अख्तर में और मुफ्ती शमाइल में, तो अब कौन सा फर्क है? एक सिक्के के दो पहलू, चोर चोर मौसेरे भाई, एक अल्लाह का मुनकिर, दूसरा अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला। सुभान अल्लाह, वाह इम्तियाज बरकाती साहब, वाह क्या मंतिक लगाई है आपने। आप फरमा रहे हैं कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक शख्स जो बड़ी महफिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा रहा है, अल्लाह के होने का सबूत दे रहा है, और दूसरा शख्स जो कह रहा है कि खुदा है ही नहीं। ये सब बकवास है। आपकी नजर में ये दोनों मौसेरे भाई हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी घर में आग लगा रहा हो और दूसरा आग बुझा रहा हो, और आप दूर खड़े होकर कहें, अरे ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों ही आग के पास खड़े हैं। इम्तियाज बरकाती साहब, आपकी नफरत ने आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि आपको अल्लाह को मनवाने वाला और अल्लाह को ना मानने वाला दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। जरा अक्ल के नाखून लीजिए। मुफ्ती शमाइल ने वहां जावेद अख्तर की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उन्होंने जावेद अख्तर को हराया है। लेकिन आपको यह बात समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए अल्लाह की वहदानियत से ज्यादा जरूरी आपका मसलक है। आपको लगता है कि अगर मुफ्ती शमाइल जीत गए तो शायद आपकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए चाहते थे कि काश मुफ्ती शमाइल हार जाते ताकि आपको उन पर ताना मारने का मौका मिल जाता। लेकिन अफसोस, मुफ्ती साहब जीत गए और आपका ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला फार्मूला आपके ही मुंह पर तमाचा बनकर लगा है। दुनिया देख रही है कि कौन चोर है और कौन चौकीदार। आप बस अपनी हसद की आग में जलते रहिए, इस्लाम का कारवां तो आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, बातें हैं मौलाना इम्तियाज बरकाती के उस आखिरी और सबसे बचकाने एतराज पर। उनका कहना है कि मुफ्ती शमाइल की ये कोई जीत नहीं हुई। जीत तब मानी जाती जब जावेद अख्तर अपनी हार मान लेता या इस्लाम कबूल कर लेता। इम्तियाज बरकाती साहब, लगता है आपने जिंदगी में कभी कोई डिबेट नहीं देखी। क्या किसी को दलील के मैदान में खामोश कर देना, उसे लाजवाब कर देना, उसे हराना नहीं होता? जब सामने वाले के पास बोलने के लिए अल्फाज ना बचे तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। चलिए आपकी इस मंतिक को तारीख के सबसे बड़े वाकये पर लगाते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए तो फिरौन ने सबूत मांगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी और वो सांप बन गया। अब इम्तियाज बरकाती साहब जरा गौर से सुनिए। क्या उस मौजज़े को देखकर फिरौन ईमान ले आया था? नहीं, वो अपनी हर धर्मी पर डटा रहा। उसने कहा यह तो जादू है। लेकिन वहां मौजूद जो नाजरीन थे, जो जादूगर थे, उन्होंने क्या किया? वो वहीं सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा के रब पर ईमान लाए। तो इम्तियाज बरकाती साहब, आपके लॉजिक के हिसाब से तो नौज बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम हार गए थे, क्योंकि फिरौन ने तो कलमा नहीं पढ़ा। क्या आप ये कहने की जुर्रत कर सकते हैं? हरगिज नहीं, कोई मुसलमान ये नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम की जीत ये नहीं थी कि फिरौन मान जाए, फिरौन तो मरदूद था। जीत ये थी कि देखने वालों पर हक वाज़ेह हो गया। जादूगरों ने गवाही दे दी कि मूसा हक पर हैं। बिल्कुल वही मामला यहां हुआ है। जावेद अख्तर अपनी जिद पर अड़े रहे, वो नहीं माने, लेकिन डिबेट देखने वाले लाखों नाजरीन ने गवाही दी है। कमेंट्स भरे पड़े हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमारा ईमान ताज़ा हो गया, हमने हक को पहचान लिया। इम्तियाज बरकाती साहब, आप उस एक शख्स की जिद को देख रहे हैं, लेकिन उन लाखों लोगों के ईमान को इग्नोर कर रहे हैं जो इस डिबेट से मुसलमान हुए या उनका ईमान पक्का हुआ। क्या यह फतेह मुबीन नहीं है? आप चाहते थे कि जावेद अख्तर वहां माइक पर कलमा पढ़ने लगता। ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब पूरा हॉल मुफ्ती साहब के लिए तालियां बजा रहा था और जावेद अख्तर पानी पीने पर मजबूर हो गए थे, तो अक्लमंद समझ गए थे कि हाथी गिर चुका है। खुलासा यह है दोस्तों, मौलाना इम्तियाज बरकाती का ये वीडियो इस्लाम की फिक्र कम और हसद की आग ज्यादा लगता है। उन्होंने पहले बेसिक कहकर जीत को छोटा किया, फिर हाथ चूमने का झूठा इल्जाम लगाया, फिर घर की लड़ाई को बीच में लाए और आखिर में जीत का ही इनकार कर दिया।
میرا پیغام تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے، چاہے اب بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سلفی ہوں یا کچھ اور، جب کوئی شخص اسلام کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کر رہا ہو تو خدا کے لیے اس کی ٹانگ مت کھینچیے۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہیے۔ دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس فرقے سے ہیں، وہ آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے۔ آج ضرورت اتحاد کی ہے، انتشار کی نہیں۔ مفتی شمائل صاحب نے اپنا فرض نبھایا، اب فرض آپ کا ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچے جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، مسلک کے پجاری نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ہی بے باک آواز اٹھاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔